Good morning, everyone. Today we are going to do this chapter on the face of it. It has been written by Susan Hill. It's a wonderful chapter. It has contained some great messages that how when we are children, how some of our perspectives, some of our outlooks are formed. The outlooks that we have today, when we grow up, as an adult, when we become old, the outlooks, the attitude that we have, it is not only because of, it is not totally because of ourselves. Our outlook, our attitude is influenced by the people with whom we live, like our family members, our school friends, our teachers. They also help us in forming an attitude towards life. If we have a positive outlook, it might be because of the friends and family that we have in our life. If it is a negative, if we have a very negative attitude, it may be also because of them also. Now, in this chapter, on the face of it, as you can see the name, on the face of it, the chapter is literally related to someone's face. The chapter is about a boy and an old man. The boy's name is Derry. He's 14 years old child. And his a part of his face is burnt. जो face का एक part होता है, एक side that has been burnt because of acid. So you can imagine what would happen with him. लोग क्या करते होंगे उसको? If we see, if normally, if you are in a school, you see that if there is a child who is different from other kids tease him. अगर कोई बच्चा है जो physically disabled है, या if there is a child who stammers, other kids tease him. Everybody teases him. Everybody teases him, not only the other kids. So the same thing is going to happen here. That the boy whose name is Derry, उसका एक part face का क्या हुआ है? Burnt हुआ है, और उसकी वजह से जो लोगों जो लोगों का बिहेवियर है उसके टुवर्ड्स वो बहुत अच्छा नहीं है. And then he meets this old guy whose name is Mr. Lamb. And this Mr. Lamb is also suffering from a physical disability. And they interact, they meet and they interact, and something amazing happens. Okay. So that is what we are going to do today in this chapter, on the face of it. And let's talk about the theme of the chapter. As I have already talked about uh, the title, on the face of it. It has been written by Susan Hill. You don't need to know a lot of things about the writer. Just remember the name, Susan Hill. Let's talk about the theme. Theme I've already introduced that this story is about two people. One is Derry, who is a child, and he is also suffering from some sort of disability. Not exactly disability, but some sort of problem, you may say, that a part of his face is burnt. Then there is this other guy who is old. His name is Mr. Lamb, and he is suffering from some sort of physical disability. What has happened? That one of his legs was blown off in a war. So when he was young, he used to be a soldier in an army, and in the war he has gone to fight in a war, and because of a bomb or something, one of his legs was blown off. वो लड़ाई करता था, लड़ाई में वॉर में गया था जब यंग थे. मिस्टर लैम अभी तो ओल्ड है, जब वो यंग थे तो क्या होते, एक वॉर में लड़ने गए थे, कंट्री के साइड से. ही वाज इन द आर्मी, और उस लड़ाई में क्या हुआ, उनका एक पैर उड़ गया था, ब्लोन अप हो गया था. ठीक है, तो ही वाज यूजिंग अ टीन लेग. यू माइट हैव सीन, किसी किसी को वो प्लास्टिक वाला लेग या टीन जैसा कुछ होता है, वो उसको यूज करते हैं अगर एक पैर में कुछ दिक्कत है तो, या एक पैर कट गया हो या ऐसा कुछ सिचुएशन हुआ हो तो. ना बोथ ऑफ देम आर सफरिंग फ्रॉम समथिंग. यू कैन गेस. Derry is having this issue that a part of his face is burnt. This guy, Mr. Lamb, is also suffering. उनका एक पैर उड़ चुका है. But both of them have very, very different attitude. This child, this 14-year-old child, whose name is Derry, he's very, very pessimistic. Now, pessimistic means that he has a very negative attitude towards life. He always wants to be alone. He doesn't want to interact with other people. He doesn't like people. In fact, he says this very powerful line: "I don't like people." So he has developed a very negative attitude.
Now, whether he is responsible for this negative attitude or not, that we will discuss later at the end of the chapter. Whether he is responsible or someone else is responsible. Although I have dropped a hint in the very beginning कि हमारा जो भी एटीट्यूड होता है, हम जैसा भी बिहेव करते हैं, वो ऐसा नहीं कि वो हमारे अंदर से आता है, मतलब अचानक से हमने कुछ भगवान ने सर पे मारा और हमारे दिमाग में आ गया तो अब तो हम नेगेटिव ही सोचेंगे. सराउंडिंग्स का भी रोल होता है. So we have two people, Derry. We have talked about Derry. He is very pessimistic. On the other hand, this guy, Mr. Lamb, who is an old person whose leg is blown off, he is very, very optimistic. Optimistic means always cheerful, always thinking about positive things. And they interact, and Mr. Lamb starts to talk with Derry. काफी डिस्कशन होता है, काफी आफ्टर अ लॉन्ग कन्वर्सेशन फाइनली क्या होता है, मिस्टर लैम इज एबल टू चेंज द this he is able to change the pessimistic nature of Derry. जो डेरी का जो पेसिमिस्टिक नेचर होता है, जो हमेशा नेगेटिव सोचते रहता है, उसको वो चेंज करने की कोशिश करते हैं. और एट द एंड ऑफ द चैप्टर वी विल सी कि वेदर ही इज एबल टू डू इट और नॉट, वो चेंज कर पाते हैं या नहीं कर पाते. तो एक हम स्टोरीज में जो ये स्टोरी है, वी आर गोइंग टू लर्न अ लॉट ऑफ लेसन. पहला लेसन तो ये होगा कि हम किसके साथ रह रहे हैं, हमारा व्हाट काइंड ऑफ कंपनी वी कीप, that decides our attitude. हमारा बिहेवियर वो कंपनी, हम अगर एक फॉर एग्जांपल इफ there is a child who comes from a family where the father is very very abusive, he drinks, he comes to his house, he scolds his children, he beats his wife. नॉर्मली क्या होने वाला है कि वो चाइल्ड का जो एटीट्यूड होगा स्पेशली टुवर्ड्स वुमेन, वो बहुत ही नेगेटिव होगा. उसको जो फैमिली के लोग एक फीलिंग होगा वो काफी नेगेटिव होगा. तो बेसिकली होगा कि पहला मैसेज क्या है कि हम जिस सराउंडिंग में रह रहे हैं वो सराउंडिंग काफी इम्पैक्ट करता है. तो हमने डिस्कस कर लिया, थीम डिस्कस कर लिया कि दिस इज स्टोरी अबाउट टू पीपल, वन इज डेरी, वन इज मिस्टर लैम. बोथ ऑफ देम हैव सम सॉर्ट ऑफ इशू. दोनों के लाइफ में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, बट दोनों का जो एटीट्यूड है काफी डिफरेंट है लाइफ. तो कैरेक्टर्स मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर दिया कि दो कैरेक्टर्स हो रहे हैं, तो तीन कैरेक्टर्स है. वन इज वेरी माइनर कैरेक्टर, ठीक है. टू मेन कैरेक्टर्स आर डेरी एंड सेकंड कैरेक्टर इज मिस्टर लैम. और फिर हम देखेंगे छोटा सा एक रोल है डेरी की मदर का भी. आप पिक्चर में एक रिप्रेजेंटेशन देख सकते हो कि डेरी है, इसका जो फेस है वो क्या है, बर्न्ट है. और ये है मिस्टर लैम जिनका एक जो पैर है वो क्या है, वो टीन का बना हुआ है. क्योंकि एक पैर उनका, मैंने जैसे बताया कि ये वॉर में गए थे, ही वाज अ सोल्जर, और एक पैर उनका मतलब बिकॉज ऑफ बॉम्ब और समथिंग उड़ गया था. Now let's come to the story. Now this story is for drama. So of course there will be some opening scene, there will be closing scene, and let's talk about the opening scene. जो पहला scene होता है ड्रामा का, let's talk about that. Now the first opening scene of this play is in the garden of Mr. Lamb. Mr. Lamb क्या है, वो उनका एक बहुत बड़ा गार्डन है और उसी गार्डन के अंदर उनका घर भी है. तो जो पहला सीन होता है, जो पहला ओपनिंग सीन होता है वो वही का है. और हम क्या देख रहे हैं कि द ओपनिंग सीन मिस्टर लैम इज सिटिंग इन हिज गार्डन एंड डेरी एंटर्स इनटू द गार्डन. डेरी गार्डन में एंटर करता है, ठीक है. और वो बड़ा चुप, ही इज वेरी वेरी हेसिटेटिंग, ही इज लुकिंग हियर एंड देयर, इधर उधर देखकर वो गार्डन में एंटर करता है. सो अगर वो इधर उधर देखकर गार्डन में एंटर करता है, और वो क्या हुआ है, ही हैज नॉट कम थ्रू द मेन गेट, ही हैज कम थ्रू द he has come by jumping over the wall. जो गार्डन होता है, गार्डन का क्या होता है, चारों तरफ से फेंसिंग किया होता है, तो मेन गेट से अंदर नहीं आया है, वो जंप करके आया है. जो गार्डन का वॉल होता है उसको जंप करके एंटर किया. तो he has entered the garden secretly. मतलब बिना किसी के नोटिस में वो गार्डन में एंटर किया. It's like he is entering like a thief. तो होता क्या है, अगर तुम चोर की तरह किसी कहीं जा रहे हो, जैसे रात में अगर सपोज करो तुमको भूख लगा है, या तुमको पता है मम्मी ने कुछ फ्रिज में अच्छा कुछ बना के रखा है, और तुम रात में 1 बजे उठकर फ्रिज खोल रहे हो, ठीक है, तो तुम हमेशा क्या, यू विल बी वेरी वेरी कॉशियस. और सडनली क्या होगा, सपोज करो तुमने फ्रिज खोला, खाना निकाला, भी एक बाइट ले रहे हो, एक स्पून बाइट ले रहे हो, तब तक क्या हुआ, किसी ने तो बोला कि क्या कर रहा है, और क्या होगा, यू विल बी शॉक्ड. So the same thing is happening. He is very very careful. He is very very hesitating. He is hesitating a lot. And when he enters into the garden,
he's looking here and there. He thinks that nobody is there, nobody has seen him, but suddenly क्या क्या होता है? Mr. Lamb बोलता है, mind the crab apples. He's not telling hi hello, simply he's telling mind the crab apples. Crab मतलब जो पक के जो एप्पल नीचे गिर जाता है. So in his garden there are apple trees also. So he's shocked. He's surprised. मतलब वो नहीं होता, एकदम जंप मार देता है कि ये कौन है? मैं तो सोचा कि कोई है ही नहीं. ठीक है. तो वो थोड़ा सा डर जाता है. And he's like, who is there? कौन है? कौन बोल रहा है? कौन बात कर रहा है मेरे से? He's like that. Okay. And फिर क्या होता है? Mr. Lamb introduces himself. Mr. Lamb telling कि my name is Mr. Lamb. I am the owner here. और ही इज एडवाइजिंग कि तुम थोड़ा ध्यान से चलो नीचे क्रैब एप्पल से, क्योंकि अगर ध्यान से नहीं, क्योंकि व्हाई इज एडवाइजिंग टू पे अटेंशन, बिकॉज वो इधर उधर देख के चल रहा था, वो सामने नहीं देख रहा था. तो मिस्टर लैम्ब बोल रहा है कि एक काम करो, तुम थोड़ा ध्यान से चलो, नहीं तो क्या होगा अगर तुम्हारा पैर उस पे गिरा, क्रैब एप्पल्स पे गिरा, तो व्हाट विल हैपन कि तुम गिर सकते हो, पैर फिसल के तुम नीचे आ सकते हो. बट ये चीज इसको पसंद नहीं था, बिकॉज व्हाट ही हैज एक्सपेक्टेड कि this place was vacant, nobody was there, and he wanted to spend some lonely time, alone, me time जिसको बोलते हैं, अकेले रहना चाहता था वहां पे. उसको लगा था यहाँ पे कोई नहीं है, इसीलिए वो आया भी था. इनफैक्ट he wanted to spend some lonely time. उसको नहीं चाहिए, तो वो किसी बताया था मैंने, वो किसी से इंटरेस्ट नहीं था, वो लोगों से दूर भागता था. और रीजन भी थोड़ा बहुत तुम गेस कर ही चुके हो, क्योंकि जब लोगों के साथ होता था और उसका जो फेस बर्न था, तो लोग उस पर तरह तरह का कमेंट्स किया करते थे. So that's why he wanted to be alone. So he has entered in this, he has come to this garden hoping that no one would be there. But जैसे ही बेचारा एंटर किया, क्या देख रहा है? अरे यार, यहाँ तो ऑलरेडी कोई है. तो वो थोड़ा सा चौंक जाता है. वो इसको ये चीज उसको ये पसंद नहीं आता है कि क्यों कोई है वहां पे. एंड मिस्टर लाइम इज टेलिंग, मिस्टर ही इज टेलिंग कि अरे हु आर यू? आई थॉट कि नोबडी वाज हियर. मिस्टर लाइम हाँ कोई बात नहीं, यू डोंट नीड टू बी अफ्रेड ऑफ मी. तुमको मेरे से डरने का जरूरत नहीं. कि he tells his name कि my name is Mr. Lamb, और तुमको डरने का जरूरत नहीं, तुम आराम से आके बैठ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं. तो डेरी बोला कि नो नो, he thought that this place was empty, this place was vacant. उसको तो ये लगता था कि घर मतलब ये वो जो गार्डन में घर है उसमें कोई नहीं रहता, गार्डन में कोई नहीं रहता, इसलिए वो आया था. बट सिंस देयर इज समवन, ही विल नॉट स्टे देयर. वो वहां से चला जाएगा, बोला कि मैं जा रहा हूँ, मैं नहीं रुकूंगा. ठीक है, कि मैं जा रहा हूँ यहाँ से. He's telling कि हाँ, तो ये तुम्हारा मर्जी है, ये तुम पे डिपेंड करता है, रहना है तो रहो, तुमको जाना है तो जाओ. ठीक है, और कोई दिक्कत नहीं, बट तुमको मेरे से डरने का जरूरत नहीं. अगर मेरी मेरी वजह से जा रहे हो तो इट्स फाइन, यू डोंट नीड टू गो. मतलब मैं कुछ नहीं बोलने वाला, मैं कुछ नहीं करने वाला, मैं यहाँ बैठा हूँ. इट्स अ ब्यूटीफुल डे, आई एम गोइंग टू एंजॉय द डे. तुम भी कहीं बैठ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं. नो. तो मतलब ही इज ट्राइंग टू पैसिफाई हिज ही इज ट्राइंग टू पैसिफाई हिम. मिस्टर लैम इज ट्राइंग टू काम हिम डाउन कि कोई बात नहीं, डरने की कोई जरूरत नहीं, तुम अगर रहना चाहो तो रह सकते हो, कोई दिक्कत नहीं. एंड बट ही इज नॉट श्योर. उसको क्या लग रहा है कि नो कहीं ऐसा ना लगे कि इसको लगे कि मैं चोर हूँ, चोरी करने आया हूँ, एप्पल्स तोड़ने आया हूँ. तो उसको ये बड़ा अंदर डेरी को लग रहा है कि यार मैं तो एक तो मतलब वॉल जंप करके आया हूँ, हो सकता है कि मेरा जो इंप्रेशन है वो नेगेटिव हो, एज ए चोर की तरफ मतलब ट्रीट किया जाऊँ. तो बोलता नहीं नहीं मैं तो जाऊंगा. ठीक है. तो मिस्टर लैम बोला कि ऑफ कोर्स इट्स योर चॉइस, तुमको जैसे करना. वी आर लिविंग इन अ फ्री कंट्री भाई, डेमोक्रेटिक कंट्री है, तुमको रहना है तो रहो, कोई बात नहीं, जाना है तो जाओ, मैं तुमको नहीं रोकूंगा. हाँ, अगर सिर्फ मेरी वजह से जा रहे हो तो मत जाओ, कोई बात नहीं. और तुम पहले इंसान हो जो वॉल जंप करके आए हो, बहुत सारे लोग आते हैं गार्डन में, तुम भी आ सकते हो. नेक्स्ट टाइम से बस मेन गेट से आ जाना, जंप वम्प करके जरूरत नहीं है. बहुत सारे लोग आते हैं, तुम क्यों जंप करके आते हो यार, मेन गेट से आ जाना, क्यों हुआ? तो ही गेट्स एंग्री कि तुम क्या, यू आर वॉचिंग मी, तुम देख रहे थे क्या कि मैं कैसे आ रहा हूँ? मिस्टर लैमिस टेलिंग हाँ, मेनी पीपल कम, अगर बैठा हूँ तो आंख बंद थोड़े कर लूंगा मैं. इट्स अ ब्यूटीफुल डे, आई एम एंजॉयिंग द डे. इतना अच्छा डे है तो ऑफकोर्स मैं अगर बैठा हूँ तो मुझे सामने तो दिखेगा ना कि अब कोई वॉल जंप करके आ रहा है तो मैं आंख थोड़े बंद कर लूँ कि नहीं मैंने नहीं देखूंगा. लाइक हाँ ऑफकोर्स मैंने देखा, बट नो इशू, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं. तुम, मैं ये नहीं बोल रहा कि यू आर अ थीफ. ठीक है, बट हाँ नेक्स्ट टाइम से आना होगा तो तुम मेन गेट से आओगे, यू आर मोर देन वेलकम. मेरा गेट जो वो गेट है, मेन गेट है, वो हमेशा ओपन होता है, तो तुम डायरेक्ट उसी से आ जाना.
और अगर तुमको रहना है तो रहो, नहीं तो इट्स योर चॉइस। सो अभी तक हमने क्या देखा फर्स्ट सीन में कि डेरी गार्डन में आया है, ही हैज जंप्ड ओवर द वॉल, वॉल जंप करके आया है, और ही वाज एक्सपेक्टिंग कि गार्डन में कोई नहीं होगा, बट मिस्टर लैम इज सिटिंग देयर, द ओनर ऑफ द गार्डन, एंड देयर इज अ हाउस आल्सो इन द गार्डन, सो ही इज द ओनर, मिस्टर लैम इज द ओनर। वो गार्डन में बैठे हुए हैं और इसको बोल रहे हैं कि थोड़ा ध्यान से चलो, नीचे क्रैब एप्पल्स है, अगर ध्यान से नहीं लोगे तो क्या हो जाएगा, पैर उस पे पड़ेगा तो तुम यू में स्लिप, तुम स्लिप कर जाओगे, चोट लग सकता है। और ही से स्टार्टल ये चौक जाता है क्योंकि ही थॉट कि यहाँ तो कोई नहीं था, कि यहाँ तो कोई नहीं है। तो बोला कि नहीं नहीं मैं वापस जा रहा हूँ। तो मिस्टर लैम समझाने की कोशिश करे कि कोई दिक्कत नहीं, अगर तुमको रहना तो रह जाओ यार, मैं भी बैठा हूँ, तुम भी उधर जाकर बैठ जाओ, साथ में बैठना साथ में बैठो, जहाँ बैठना वहां बैठो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। बट ही वॉन्टेड टू स्पेंड सम लोनली टाइम। नाउ ही इज टेलिंग कि नहीं मैं नहीं रुकूंगा। नाउ यू विल वंडर कि व्हाई ही डजंट वांट टू स्टे। उसको लोग मिस्टर लैम को देख के इतना चौक क्यों जाता है। जब वो आया था सम क्वालिटी टाइम स्पेंड करने, तो कहीं भी बैठ सकता था, बट वो बोला कि नहीं आई विल नॉट स्टे। तो ही टेलिंग कि आई विल नॉट स्टे बिकॉज यू आर अफ्रेड ऑफ मी, कि तुम मेरे शक्ल देख के क्या हो जाएगा, फेस देख के क्या हो जाओगे, डर जाओगे। सबको ही डर जाता है मेरा फेस देख के, ठीक है, तो मैं नहीं चाहता कि तुम मेरी वजह से डरो। ही टेलिंग कि क्योंकि मेरा जो एक्सपीरियंस है वो लोगों के साथ वो क्या है, ऐसा ही रहा कि जब भी मैं किसी के साथ बैठता हूँ, जब भी कोई मेरा फेस देखता है तो नॉर्मली वो लोग क्या करते हैं, मेरे बारे में कमेंट करते हैं, ठीक है, एंड पीपल कॉल मी अगली। रिमेम्बर उसका एक पार्ट फेस का क्या था, जल गया था, तो उसकी वजह से लोग बहुत बात करते थे, उसको अगली बुलाते थे, ठीक है। एंड दे यूज्ड टू टेक पिटी ऑन हिम, उस पे दया नहीं, वो नहीं होता दया वाला फीलिंग के साथ, अब सीआईडी वाला दया नहीं जो दरवाजा तोड़ता है, डिफरेंट वाला दया है, पिटी जिसको बोलते हैं इंग्लिश में। और उसको ये चीज पसंद नहीं था कि व्हाई पीपल कैन नॉट ट्रीट हिम एज अ नॉर्मल किड, व्हाई पीपल नीड टू कमेंट अबाउट हिम, व्हाई पीपल नीड टू फील पिटी अबाउट हिम, नॉर्मल ट्रीट करो यार। बट अभी तक का एक्सपीरियंस क्या रहा है कि जहां भी जाता था लोग अजीब अजीब सा बात करते थे, कुछ लोग बहुत क्रूअली भी बात करते थे। वी विल सी बाकी भी कमेंट्स देखेंगे कि लोग कैसे कमेंट्स करते थे उसके ऊपर। ना ही इज टेलिंग कि लोग मेरे से डर जाते हैं, इसीलिए मैं लोगों के बीच में नहीं जाता। प्लस लोग ऐसा ऐसा कमेंट करते हैं कि आई गेट हर्ट, नॉट आई ऑफ कोर्स। Derry is telling, so I'm narrating in his in direct speech. He's telling कि उसको वो चीज बुरा लगता है कि जब लोग उसके बारे में डिफरेंट डिफरेंट कमेंट करते हैं, उस पर पिटी फील करते हैं, उसको ये चीज पसंद नहीं। और ही कैन नॉट ब्लेम देम आल्सो बिकॉज ही इज फेस लाइक दैट, लोग डर जाते हैं उसका फेस देख के। ही इज टेलिंग दैट इवन आई गेट अफ्रेड व्हेन आई सी माई सेल्फ इनटू मिरर। देखो उसका परसेप्शन कैसा बना हुआ है कि फेस खराब है मतलब क्या होगा, उसको खुद को भी नहीं देखना चाहिए। इतना उसका परसेप्शन बना हुआ है कि फेस जल चुका है, अब इसका कुछ नहीं हो सकता। और उसको देख के क्या होता है, लोग डर जाते हैं। और लोगों ने ऐसा रिएक्ट किया है कि उसको लगता है नहीं सच में क्या है, ये मेरा जो फेस है वो डरावना है, उसको खुद को देख के ये लगता है। ना मिस्टर लैम tells him very very important, and it is very important, from examination point of view also. Mr. Lamb tells him that only a part of him is ugly, not the whole of him. इसलिए दैट या ये जो फेस बर्न्ट है वो अगली है, पर तुम पूरे के पूरे तो अगली नहीं हो, सिर्फ एक पार्ट जला हुआ है ना, तुम पूरे तो नहीं जले। और तुम्हारा जो अपीयरेंस है वो क्या है, वो तुम्हारी लाइफ का सिर्फ एक पार्ट है। इट्स मतलब इफ आई एम अ टीचर माय अपीयरेंस इज नॉट एवरीथिंग, ठीक है, माय बिहेवियर विल बी देयर, माय जॉब विल बी देयर, हाउ आई टीच दैट विल बी टेकन इनटू कंसीडरेशन। सिर्फ मेरा अपीयरेंस की वजह से तो कोई मेरे को जज नहीं कर सकता ना, कि मैं अच्छा आदमी हूं या बुरा आदमी हूं। तो मिस्टर लैम इज ट्राइंग टू टेल हिम कि हाँ एक जो पार्ट है वो जल चुका है और वो अच्छा नहीं है, वो पार्ट अगली दिख रहा है, बट तुम पूरे के पूरे अगली नहीं है। तो अगर तुम ये मान के बैठे हो कि यू आर अगली, अगर तुमको देखने से हम डर जाएंगे तो दिस इज वेरी वेरी रॉन्ग, ठीक है। सो नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू सी कि he wanted to go but Mr. Lamb has started a conversation. रिमेम्बर वो बोल रहा था कि नहीं मैं जाऊंगा, मैं नहीं रुकूंगा यहाँ पे, मैं तो अकेले रहने आया था। बट धीरे धीरे क्या किया मिस्टर लैम ने, उसके साथ एक कन्वर्सेशन स्टार्ट कर दिया।
बात करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। और अभी वो अपने फेस के बारे में बता रहा था, बट सडनली मिस्टर लैम क्या करते हैं, वो टॉपिक ही चेंज कर देते हैं। वो बात करने, जो टॉपिक था बात करने का, वो चेंज करने की कोशिश करते हैं। ही स्टार्ट्स टू टॉक अबाउट क्रैब एप्पल्स, एंड ही कॉल्स क्रैब एप्पल्स, ही कॉल्स एप्पल्स मैजिक फ्रूट, बिकॉज एप्पल्स हैव डिफरेंट शेड, डिफरेंट डिफरेंट तरह के शेड्स होते हैं इसके। और उसको वो क्या बोलते हैं, मैजिक फ्रूट बोलते हैं, क्योंकि फ्रूट एक ही है, कलर क्या है, डिफरेंट डिफरेंट। एंड देन इट वाज कि जब वो क्या होता है, आफ्टर सम टाइम्स वो क्रैब एप्पल्स को इकट्ठा करते हैं, कलेक्ट करते हैं, और उससे जेली बनाते हैं। एंड ही टेल्स दैट दिस जेली इज वेरी वेरी टेस्टी, यू कैन सी द पिक्चर। जैसे जो एकदम नहीं होता, पक गया है एप्पल, उसको बनाने का तरीका होता है, उसको जेली बनाते हैं, ठीक है। एंड नाउ व्हाट हैपेंस, सी व्हाट हैज हैपेंड। डेरी वाज टॉकिंग अबाउट हिज फेस, कि हाउ पीपल रिएक्ट, और मिस्टर लैम्प सडनली टॉपिक चेंज कर देते हैं, और ये बात डेरी को पसंद नहीं आता है। डेरी लाइक कि तुमने टॉपिक क्यों चेंज किया, मैं अपने बारे में बता रहा हूं तो मेरे बारे में बात करो ना, ठीक है। कि पूछोगे नहीं कि फेस कैसे जला मेरा, मिस्टर लैम्प पूछना चाहते हो तुम, क्योंकि ऑफ कोर्स अगर फेस जला हुआ दिख रहा है तो जला हुआ होगा, आग में जल गया होगा, ठीक है। मे बी इट वॉज बर्न इन अ फायर, नो नो, इट वॉज नॉट बर्न इन अ फायर, इट वॉज बर्न बाई एसिड, कि उसके ऊपर एसिड गिर गया था, और उसकी वजह से वो क्या हो गया, फेस उसका जल गया। कैसे गिरा था ये हमने नहीं पता, नाइदर इज गिविंग अस इन्फॉर्मेशन। बस हमको ये पता चल रहा है कि उसका जो फेस जला हुआ एक पार्ट, वो एसिड की वजह से जला हुआ है ना। ही टेल्स समथिंग एल्स आल्सो, ठीक है। He tells that this acid not only ate his face. Now this line is very very important. He is exposing his pessimism कि कितना नेगेटिव इंपैक्ट पड़ा है उसके ऊपर, ठीक है। He tells कि जो एसिड है, it not only ate his face but it also ate him. ate him, पूरा का पूरा उसको खा गया। बोल रहा है कि सिर्फ ये मेरा फेस नहीं खाया है, मेरा फेस बर्बाद नहीं किया है, ये जो एसिड गिरा है वो मुझे मुझे पूरी तरह बर्बाद कर गया है। अब देखो उसको ऐसा क्यों लग रहा है कि वो पूरी तरह बर्बाद हो रहा है, ठीक है। हुआ क्या है कि ये तो बात, रियलिटी तो ये है कि उसका जो एक पार्ट फेस का है वो जल गया, बट लोगों ने ऐसा कमेंट किया उसके ऊपर, उसके उससे रिलेटेड ऐसा बात किया है कि उसको लगता है कि वो अब लाइफ में कुछ कर ही नहीं सकता। उसको ये चीज लगने लगता है कि वो लाइफ में कुछ नहीं कर सकता। और ये ऐसा फीलिंग उसमें क्यों आया, बिकॉज ऑफ अदर पीपल, बिकॉज ऑफ हिज फैमिली मेंबर्स, दे हैव नेवर टोल्ड हिम लाइक कि कोई बात नहीं बेटा, फेस ही तो जला, यू कैन डू एनीथिंग एल्स। यू माइट हैव हर्ड अबाउट मिस लक्ष्मी अग्रवाल, आई गेस। नो, शी इज अ एसिड अटैक सर्वाइवर, ठीक है। तो a part of her face has been also burned, but she has not stopped. I think she is a fashion designer or something, ठीक है। बट तो क्या हुआ होगा, या तो उनके अंदर से एक पॉजिटिव फीलिंग आया होगा कि नहीं, कोई बात नहीं, सिर्फ फेस मेरा जाए ना, मेरा जो टैलेंट है, बाकी चीज तो मेरा वैसे का वैसे ही है। लोगों ने भी सपोर्ट किया होगा उनको शायद। बट यहाँ पे क्या हम देखेंगे कि लोगों ने इसको बिल्कुल सपोर्ट नहीं किया, और ही इज अ चाइल्ड। अगर बच्चे से जैसा बिहेव करोगे, जो बात करोगे, वही चीज उसके दिमाग में फिक्स होने लगता है। तो उसको क्या लगता है कि मेरा तो पूरा लाइफ बर्बाद हो गया, ये जो एसिड है सिर्फ मेरा फेस बर्बाद नहीं किया, मेरा तो पूरा लाइफ बर्बाद कर दिया। और उसको ऐसा क्यों लगता है, क्योंकि सब लोग ऐसा ही बोलते हैं, ऐसा ही ट्रीट करते हैं, सिर्फ उस पर पिटी फील करते हैं। ये नहीं, कोई नहीं बोलता कि तुम लाइफ में जो चाहे कर सकता है, ठीक है। मिस्टर लैम्प डजंट एग्री, मिस्टर लैम्प डजंट एग्री। व्हाट ही डजंट एग्री ऑन दिस पार्ट, कि इट ऑल्सो एट हिम। बोला कि डेरी बोलता है ना कि मेरा तो पूरा लाइफ बर्बाद हो गया, मिस्टर लैम्प बोला कि नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं। तुम ये समझने की कोशिश करो कि तुम्हारा क्या हुआ है, सिर्फ फेस का एक पार्ट बर्बाद हुआ है, तुम्हारा पूरा लाइफ बर्बाद नहीं हुआ है, ठीक है। और लोगों का क्या होगा कहने का, लोग तो कुछ भी कहेंगे, लोगों का तो डिफरेंट डिफरेंट पर्सपेक्टिव होता है, ठीक है। कोई अच्छा बोलेगा, कोई बुरा बोलता है, एक ही चीज को ले लो, किसी को अच्छा लगता है, किसी को बुरा लगता है, तो लोग तो कुछ ना कुछ बोलते ही नहीं। तो तुम हमेशा लोगों के ऊपर क्यों ध्यान देते हो, लोगों की बात पे क्यों ध्यान देते हो हमेशा। एंड देन ही गिव्स एग्जांपल ऑफ वीट। वीट क्या होता है ना, अनवांटेड प्लांट को हम वीट बोलते हैं, घास वास जो होता है उसको वीट बोलते हैं। तो बोला, ही इज पॉइंटिंग टुवर्ड्स वीट, बोलो, एंड ही इज आस्किंग व्हाट कैन यू सी देयर, ये ग्रास और समथिंग, इधर एक ध्यान से देखो, एंड देन ही टेल्स इट्स वीट। डेरी बोलता है हाँ वीट है उधर। तो बोलता है तुमको पता है मिस्टर लाई मिस्टर, तुमको पता है बहुत सारे लोगों को वीट पसंद नहीं है, लोग क्या करते हैं, उसको फेंक देते हैं, काट कर, या
या उखाड़ कर उसको फेंक देते हैं, बट मुझे पसंद है। मुझे लगता है कि क्या प्रॉब्लम है भाई वीड में, इट इज ग्रीन, इट इज ऑल्सो ब्यूटिफुल, ठीक है, इट्स जस्ट लाइक अदर प्लांट्स, अदर ट्रीज, वो भी ब्यूटीफुल। अगर व्हाट इज टाइम टू दे, कि देखो लोगों, बाकी लोगों को क्या लगता है कि वीड फालतू चीज है, मेरा पर्सपेक्टिव डिफरेंट है, मेरे को अच्छा लगता है। हो सकता है दो चार लोग और भी ऐसे मिले जिनको भी अच्छा लगता है, कुछ लोग ऐसे भी मिलेंगे जिनको असर नहीं पड़ता कि अच्छा या खराब है, वो न्यूट्रल उनका बिहेवियर हो, कुछ लोगों को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। तो ही लाइक पीपल आर गोइंग टू हैव डिफरेंट पर्सपेक्टिव। तुम अगर इफ यू आर मीटिंग 100 पीपल, इट्स नॉट लाइक दैट 100 आउट ऑफ देम आर गोइंग टू कंप्लेन, नॉट कंप्लेन, दे आर गोइंग टू टॉन्ट यू अबाउट योर फेस। हो सकता है कि दो चार लोग ऐसे भी जिनको कोई फर्क नहीं पड़ता तुम्हारी फेस की वजह से, तुमको नॉर्मल ट्रीट करेंगे। तो ही टेलिंग कि, और हम क्या है, सबके सब सेम ही है। तुम्हारा फेस बर्न्ट है, मेरे लेग नहीं है, किसी के कैरेक्टर के साथ कुछ प्रॉब्लम होगा, किसी के साथ कुछ प्रॉब्लम होगा, किसी के साथ कुछ प्रॉब्लम होगा। तो अगर ब्रॉडर सेंस में देखें तो क्या है, सब सेम ही है। वी ऑल आर ह्यूमन बींग्स, वी ऑल हैव सम सॉर्ट ऑफ प्रॉब्लम। डिफरेंट क्या है कि तुम्हारा एटीट्यूड डिफरेंट है, तुम्हारा पर्सपेक्टिव डिफरेंट है, मेरा डिफरेंट है। अगर कोई तीसरा बंदा है तो उसका भी पर्सपेक्टिव क्या होगा, डिफरेंट होगा। बट बेसिकली क्या है, हम सबके सब इंसान है, सबके सब सेम ही है, सबके लाइफ में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। तो यू डोंट नीड टू फील दैट नेगेटिव, तुमको उतना नेगेटिव फील करने का जरूरत नहीं है। तो हम क्या देख रहे हैं कि इंट्रैक्शन स्टार्ट हो गया दोनों का, और मिस्टर लैम इज ट्राइंग टू चेंज हिज पर्सपेक्टिव, डेरिस पर्सपेक्टिव, डेरिस एटीट्यूड। जो इतना उसमें उनको क्या लगा है, यार ये तो बंदा, ये 14 साल का बच्चा है एंड ही सो नेगेटिव, ये तो बोला कि इसका पूरा लाइफ बर्बाद हो गया, कि एसिड ने इसको बर्बाद कर दिया। तो ही इज ट्राइंग टू मेक हिम अंडरस्टैंड कि सिर्फ फेस बर्बाद हुआ है बेटा, पूरा लाइफ तुम्हारा बर्बाद नहीं हुआ। तुम्हारा अगर टैलेंट है तो तुम, वो टैलेंट एसिड ने बर्बाद नहीं किया। तुम्हारा भगवान ने तुम्हारे दोनों हाथ पैर दिया, वो अभी वैसे का वैसे, तुम जो चाहो उससे कर सकते हो। तो हम, तो ही इज ट्राइंग टू एक्सप्लेन दिस थिंग्स। फिर मिस्टर लैम क्या करते हैं, डेरी को अपने बारे में बताते हैं। रिमेंबर मैंने बताया था ना कि उनका भी पैर क्या था, टीन का था। तो वो बता, वो आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन दैट पार्ट, कि वो एक he was, when he was a young, he was in army, he has gone to fight a war, और एक बॉम्ब की वजह से क्या हो गया था, उनका पैर उड़ गया था। And he is telling that people, the other kids, small kids, near his house, जो उस घर के आसपास जिनका घर है, वहां पे जो बच्चे रहते हैं, वो उनको क्या चिढ़ाते हैं मिस्टर लैम को, लेमी लैम। लेम मतलब जो थोड़ा लंगड़ा कर चलता है, तो उसका नाम क्या रख दिया है, लेमी लैम। ठीक है, सारे बच्चे क्या चिढ़ाते हैं उनको, लेमी लैम चिढ़ाते थे। अब बंद कर दिए, क्यों बंद कर दिया, आई टेल यू। बट बोलते कि शुरू शुरू में मेरे को लेमी लैम चिढ़ाते थे और मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता था। अब यार लंगड़े को लंगड़ा नहीं बोलेंगे तो क्या बोलेंगे, तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, जिसको जो बोलना है बोलो, कोई दिक्कत नहीं। एंड दैट ही नेवर माइंडेड। और फिर क्या हुआ, क्योंकि देखो, अगर तुमको, मेरे को कोई चिढ़ा रहा है और मैं अगर रिएक्ट नहीं कर रहा, तो फिर सामने वाले को मजा ही नहीं आएगा। मैं किसी को चिढ़ा रहा हूँ और जब तक वो गाली नहीं दे, ठीक है, मेरे से लड़ाई नहीं करे, तब तक मजा कहाँ आएगा चिढ़ाने। ठीक है, तो अगर सामने वाला रिएक्ट ही नहीं कर रहा, तो फिर इवेंचुअली क्या होगा, मैं उसको चिढ़ाना बंद कर दूंगा। सो द सेम थिंग हैज हैपेंड विद मिस्टर लैम। पहले तो बच्चे क्या करते थे, उनको लेमी लैम चिढ़ाते थे, बट वो कोई रिएक्ट ही नहीं करता। हाँ, बोलते थे मस्त नाम है, सही, एकदम सुटेबल नाम है, इतना अच्छा नाम तो मेरे पेरेंट्स ने भी नहीं रखा, लंगड़ा लैम, मस्त नाम है, लंगड़ा तो लंगड़ा ही बोलोगे यार। ठीक है, and then he gives reference of beauty and beast. Now this point is important, तुमको हर जगह इसका explanation नहीं मिलेगा। He is telling that beauty and beast are related. Now why is giving this reference of beauty and beast, and यहाँ पे क्या है, क्या ये beauty and beast। तो हुआ क्या था कि there was a beautiful girl and there was a beast। ठीक है, तो beast, of course beast, very cruel animal kind of thing। So this beautiful girl fell in love with the beast। ठीक है, she saw this beast and she fell in love, while other people used to be scared of him, this beautiful girl fell in love। Now this point is important, why is giving example, he is telling कि हो सकता है जैसे वो बीस्ट था, उससे बाकी पूरी दुनिया डरती थी, बट ये जो लड़की थी, ये जो ब्यूटीफुल गर्ल थी, शी फेल इन लव विथ हिम। तो ही ट्राइंग टू टेल कि दुनिया में क्या है, लोगों का डिफरेंट तरह का पर्सपेक्टिव है।
सबका पर्सपेक्टिव, सबका सोच क्या है, एक जैसा नहीं है। दुनिया में हजार लोग, मतलब देयर आर मिलियंस ऑफ पीपल और देयर आर मिलियंस ऑफ व्यूज। सब एक जैसे नहीं सोचते। तो तुम्हारे साथ ही इज ट्राइंग टू मेक हिम कन्विंस कि तुम्हारे साथ भी वैसा ही है। जरूरी नहीं कि अगर तुम्हारे बारे में लोग गलत नेगेटिव बात करते हैं, ठीक है, तुमको अगली बोलते हैं, तो जरूरी नहीं कि पूरी दुनिया तुमको वैसा ही ट्रीट करेगी। ठीक है, तुम्हारा अलग पर्सपेक्टिव, तुम ऐसे लोगों से भी मिलोगे जिनको तुम्हारे फेस से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ब्यूटी एंड बीस्ट का रेफरेंस क्या है? व्हाई इज गिविंग द रेफरेंस ऑफ ब्यूटी एंड बीस्ट? बिकॉज ही इज ट्राइंग टू मेक डेरी अंडरस्टैंड कि द वर्ल्ड, in this world there are a lot of people and not everyone has the same kind of perspective. In this world people have got, there are different people and they have different perspective. जरूरी है कि सब एक जैसा सोचते हैं। हम क्या है, सबका अलग अलग एटीट्यूड है, सबका अलग अलग विजन है, सबका अलग अलग थॉट प्रोसेस है। तो ही चलें कि अगर तुमको कोई चिढ़ा रहा है तो ऐसा नहीं कि पूरी दुनिया वैसा ही सोचती है कि तुम अगली। यू डोंट नीड टू थिंक लाइक दैट। डेरी बोलता कि नहीं, ये जो एग्जांपल है बिल्कुल पसंद है, क्योंकि उस स्टोरी में क्या होता है, जो लड़की होती है सी फॉल्स इन लव विद द बीस्ट एंड व्हेन शी किसेस द बीस्ट इज ट्रांसफॉर्म इनटू अ हैंडसम मैन। उसको कर्स होता है, एक्चुअली बीस्ट को कर्स होता है कि जब वो लड़की आके उसको किस करेगी तो उसका फेस क्या हो जाएगा, वो बीस्ट से एक हैंडसम मैन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो बोल रहा है कि वो बोल रहा है कि उस तुम जो स्टोरी का एग्जांपल दे रहे हो, उस स्टोरी में क्या होता है, जो बीस्ट तो वो अच्छा इंसान में कन्वर्ट होता है, हैंडसम लड़के में कन्वर्ट हो जाता है। बट मेरा तो फेस जो बर्nt है वो तो हमेशा पूरे लाइफ टाइम के लिए क्या हो रहा है, वैसे का वैसे ही रहने जा रहा है। मेरा फेस तो नहीं चेंज होने वाला। लैम क्या बोल रहा है कि नहीं, मेरा मतलब वो नहीं है कि तुम्हारा चेंज, बोल रहा है कि हाँ एग्जैक्टली आई एग्री, ठीक है, कि तुम्हारा फेस नहीं चेंज होने वाला और लोग तुम्हारे फेस को देखेंगे। बट जरूरी नहीं कि सिर्फ तुम्हारे फेस को ही देखेंगे यार, और जरूरी नहीं कि तुम भी सिर्फ वही चीज देखो। देयर आर सो मेनी ब्यूटीफुल थिंग्स इन द वर्ल्ड। तुम सिर्फ इतना नेगेटिव एटीट्यूड लेके फेस के बारे में ही हमेशा क्यों सोचते रहते हो? बाकी दुनिया भी तो देखो यार, इट्स सो ब्यूटीफुल। थिंक अबाउट दोस थिंग्स ना, लुक एट दोस थिंग्स ना। व्हाई यू आर ऑलवेज वरीड अबाउट योर फेस? बाहर का दुनिया देखो, बाहर का चीज देखो। क्यों सिर्फ लोग जो बात कर रहे हैं उसी के बारे में सोचते रहते हो? तो व्हाट ही इज ट्राइंग टू डू, ही इज ट्राइंग टू मेक हिम अंडरस्टैंड कि या द वर्ल्ड इज बोथ ब्यूटीफुल एंड अगली। और तुम अभी क्या कर रहे हो, सिर्फ और सिर्फ अगली चीजों पे फोकस कर रहे हो। दुनिया बहुत बड़ी है, बहुत डिफरेंट है, बहुत अलग अलग तरह के लोग हैं, बहुत अलग अलग चीजें हैं दुनिया में। तुम बाकी चीजों पे भी फोकस करो, ब्यूटीफुल चीजों पे फोकस करो। एंड तेरी बोलो कि अरे तुम रहने दो, तुम क्या बात करो, तुमको क्या लगता है लोग मेरे को मोटिवेट करने का ट्राई नहीं किया है? बहुत लोग किए हैं। लोग पीपल गिव मी अदर एग्जांपल, उसको देखो, तुम्हारा तो सिर्फ एक फेस का एक पार्ट ऑफ योर फेस हैज बीन बर्न्ड, उसको देखो, उसको कितना बर्न हुआ है, उसको देखो वो उसका पैर नहीं है, लुक एट दैट पर्सन ही इज डेफ, लुक एट दैट पर्सन इज ब्लाइंड, लुक हाउ दे आर लिविंग योर लाइफ, तुम भी अपना लाइफ वैसे जियो। ठीक है, एंड सच एग्जांपल्स इन्फ्यूरिएट हिम। डेरी बोलता है कि जब मुझे लोग ऐसा ऐसा एग्जांपल देते हैं कि देखो तुमसे बुरा हाल है बट फिर भी देखो वो अपना लाइफ जी रहा है, तुम इतना नेगेटिव क्यों हो? तो वो बोला कि मुझे ऐसे ऐसे एग्जांपल्स पसंद नहीं, जब मुझे लोग दूसरों के एग्जांपल्स देते हैं। उसको देखो होता क्या है ना, सपोज इफ आई एम सफरिंग और लोग मुझे दूसरे किसी के एग्जांपल देके देखो यार वो भी सफर कर रहा है, तुम भी, तो वो चीज मेरे को पसंद शायद नहीं है। यार मेरा सफरिंग मैं दूसरों को क्यों देखूं यार, मैं अपना प्रॉब्लम देखूंगा ना। तो देयर इज ऑल्सो लाइक दैट, उसको नहीं पसंद जब दूसरे लोग उसको किसी और के एग्जांपल देके उसको मोटिवेट करने की कोशिश करते हैं, उसको ये चीज पसंद नहीं आता। देन इज टॉकिंग अबाउट अ कमेंट ऑफ अ वुमन, उस पे एक औरत ने कुछ कमेंट किया था उसके ऊपर। ठीक है, क्या बोल रही थी कि लुक एट दिस फेस हाउ अगली ही लुक्स। मतलब देयर वाज दिस वुमन, शी वाज विद सम अदर वुमन, दो औरत थी, तो एक औरत क्या बोलती इसके फेस को देख के कि इसको देखो कितना अगली है, ओनली अ मदर वुड लव सच अ फेस, नो वन एल्स इज गोइंग टू लव दिस पर्सन, ओनली अ मदर कैन लव, दूसरा कोई इससे कोई प्यार करने वाला नहीं है। और ऐसा क्या होगा, ही मस्ट हैव हर्ड दिस कमेंट अगेन एंड अगेन, और उसको सच में ये लगने लगा है कि नोबडी इज गोइंग टू लव, नोबडी इज एवर गोइंग टू फॉल इन लव विथ। एंड की उसकी मदर खुद क्या करती है, उसको अपोजिट साइड में जो पार्ट जो जला नहीं है उसके ऊपर उसके गाल पे किस करती है, उसको पसंद नहीं आता, बोले अभी भी बच्चा जैसा ट्रीट करती है, उसको ये पसंद नहीं आता।
तो लैम उसको क्या बोलते हैं, यार तुम जरूरी नहीं कि हर मतलब लोग हर बात में लोगों को बिलीव करो, लोगों का हर बात बिलीव करो। लोग तो मतलब कुछ भी बोल देते हैं, तुमको हर जगह प्रूफ करने का जरूरत नहीं है ना तुमको खुद को। ठीक है, हर किसी के सामने प्रूफ करने का जरूरत, तुम बस ये समझो ना कि तुम्हारा सिर्फ एक पार्ट जला हुआ है यार, तुम पूरे के पूरे नहीं जले हो, तुम्हारा हर चीज नहीं बर्बाद हो चुका है। तुम्हारा हाथ है, तुम यूज कर सकते हो, तुम्हारा माइंड है वो यूज कर सकते हो, तुम जो चाहो और भी कुछ कर सकते हो। ठीक है, so we will stop here. We have completed one part of the story. I'll quickly summarize. There is a child. He enters into the garden. He hopes that nobody was there, but the owner of the garden is there. Both of them start to have a conversation. Although he wanted to live alone there, उसको अकेले रहना था, but जो मिस्टर लैम होते हैं उससे कन्वर्सेशन स्टार्ट करते हैं, और बात बात में पता चलता है कि ये तो बहुत नेगेटिव एटीट्यूड है इसका, और वो मिस्टर लैम जो होते हैं वो उसको चेंज करने की कोशिश करते हैं। जब ये बोलता है कि इसको पूरा एसिड इसको खा गया, इसका लाइफ बर्बाद कर दिया होता, तो समझाने की कोशिश करते हैं कि नहीं, एसिड सिर्फ तुम्हारा फेस बर्बाद किया है, एक पार्ट ऑफ फेस बर्बाद किया है, पूरी तरह तुम बर्बाद नहीं हुए। So we are going to continue rest of the story in the next part. So till in this class we will stop here.